एक्टिव डायरेक्टरी वो होता है जिसमें हम लोग हर एक यूजर का प्रोफाइल रखते हैं। No, no, I'm not asking about I'm asking about backup and restore. If Active Directory got crashed or you are facing any data, any problem, then how to recover? No idea. No idea. No, sir. Okay. If you properly communicate, then properly solution is there, right? The communication is very important. मैंने पिछले बैच में भी बताया था कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन यदि करोगे तो आई होप किसी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, right? And Yes. everyone Yes, sir. have unmute settings, Yes, so sir. please communicate properly. If you tell me, Yes, sir, sir. please tell me from basic, I can start from basic. If you tell me, sir, just describe the troubleshooting part, then I discuss the troubleshooting part. Sir, Where start basically from you are basics. not completing the theory and practical, that part I cover here, which is very important for your practical. Everyone have an idea about the basic concept, how to convert MBR to GPT, GPT to MBR. This part is clear to everyone, right? Yes, sir. Yes, sir. It's Yes, sir. clear. Yes, sir. Because when you are going to some questions are very much important, which is this one. It's all question any is particular all questions check it out. No, sir. What is the difference between legacy and EVFI? Tell me, what is the difference? नहीं पता है सर और ना। I just cross check. सिर्फ describe कर दो. Both What is the are legacy and EVFI? support MBR, UFA support Both are GPT. BIOS mode means legacy also BIOS Both mode are or bias. yeah part of Sorry. Both are boot modes. Sorry, यही sir. बोल part of BIOS both are No, 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 legacy sorry, BIOS sir. both are the same. boot mode से मैं बताऊँ ठीक है. Are Legacy or boot. BIOS both are in same category. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Both are boot mode and UFA support GPT. Legacy support generation 1, UFA support generation 2, legacy support old boot model, and UEFI support new boot model, and legacy is not secure and UEFI is called secure, and legacy supported a master boot record, and in GPT support guide partition table it is fast, and legacy is the slow. Our partition size in MBR up to 2 TB, and UEFI partition table on 180 128 partition more than 2 TB. 128 These 128 are the what? basic difference between ये जो legal तुमने 128 बताया वो क्या है? What is partition. this? Partition style, Partition what? partition size. Partition size 128. नहीं, या GPT number of drive partitions. number of दोनों partitions. में दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे तो कंपनी पहले रिजेक्ट कर देगा. 128 जो पार्टीशन है वो नंबर है. नंबर ऑफ पार्टीशन यू कैन मैक्स टू मैक्स क्रिएट
128 पार्टीशन। तुम Okay, 128 120 पार्टीशन बना सकते हो, वो पार्टीशन साइज के अंदर में नहीं है। What is the okay, sir. partition size? More than 2 TB, More than 2 TB, what exact value? Exact value 18.8 million terabyte. बताओ। 18 exabyte, 18.8 million terabyte. In MBR, what is the partitions limit? That partition limit max to max 2 TB, not more than that. Yes, sir. MBR drive में तुम 3 primary, 1 logical बना सकते, but in GPT 128 number of partitions you should treat. Okay, Everyone sir. have idea? सबको ये इसके बारे में आइडिया है तो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. How to convert MBR to GPT, GPT to MBR, ये भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वो clear Yes, है. sir. Yes, sir. ऐसा कोई हो जो नो आइडिया बता दो अभी, नहीं तो कंपनी में जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बाकी लोग क्या, मतलब दोनों साथ एक साथ, मतलब दोनों क्लास क्या एक साथ कर रहे हो? त्रिकोणा नो रिप्लाई, यस संजय नो रिप्लाई, पारमिता नो रिप्लाई, ईश्वरबारी नो रिप्लाई, ज्योति प्लीज रिप्लाई, अनूप प्लीज रिप्लाई। सर मैं तो रिप्लाई करता हूँ. Yes, sir. देखो, पढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लास में आ गया, एचआर ने लिंक शेयर किया है और सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोला है, तुम भी ज्वाइन कर लिया, बस पूरा एक्टिव होना है। एक्टिव होगा तो ठीक है। टेल मी हाउ टू कन्वर्ट एमबीआर टू जीपीटी। क्या क्या कमेंट टाइप करोगे? सर उसका कमेंट पार्ट बताऊँ. हम्म फर्स्ट दिस पार्ट, देन लिस्ट डिस्क में जब हम एंटर करेंगे, अगर वो विदाउट स्टार आएगा तो वो एमबीआर में है, अगर वो विद स्टार आएगा तो जीपीटी में है. तो हम अगर एमबीआर टू जीपीटी कर रहे हैं तो वो स्टार आएगा. देन सिलेक्ट दिस पार्ट 0, देन क्लीन, देन कन्वर्ट जीपीटी. देन लिस्टिंग्स में जीपीटी विथ स्टार आएगा. विथ स्टार आएगा मतलब वो जीपीटी फॉर्म में है. देन एग्जिस्ट फ्रॉम दिस पार्ट, देन एग्जिस्ट फ्रॉम सीएमडी, देन क्लिक नेक्स्ट, देन इंस्टॉल ओएस. दो जगह पे चेंजेस होता है। एमबीआर जब चेंज करो, एमबीआर से जीपीटी में जब चेंज करोगे कन्वर्ट जीपीटी होगा, और जब तुम ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहोगे कन्वर्ट करोगे, जस्ट ओनली टाइप कन्वर्ट। ये आइडिया तो सबके पास है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डे 1 डे 2 में डिस्कस किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिन एंड यूजर? एडमिन और यूजर में क्या डिफरेंस है? Admin have Admin has full access and user have not full access. Admin can add user, user cannot add user. Admin have have permission to give access any file or any, or user not have this access. These are the most different between. Admin can change the settings of any machine while user not change the setting. तो और कुछ एक्स्ट्रा Admin can create and delete a user, but user don't have permission to create or change the users. Administration install and uninstall application where user not able to install and uninstall application any application.
Administration also change IP address or host name, component name. User cannot say here. What is the difference between local user versus domain users? Local user और domain user में क्या difference? Local user can log in your group, or domain user log in domain environment. Any available in domain, any devices can open. Or this is the local, the decentralized server, or domain. This is the centralized server. The centralized server manage at a sitting at a place and manage every system. Centralized administrative system. But user के पास क्या centralized administrative system रहेगा? No sir. वो तुम domain admin से बता सकते. Second वाला ठीक कि local administrator have only limited control and domain controller have domain server control. Local users and domain users में यही बता सकते हो. Local users member of work group, domain users member of domain. Domain. Okay sir. Local users created in computer, domain users created on activity. Clear? Okay sir. Yes, sir. What is the difference between local admin, domain admin? सर लोकल एडमिन का स्कोप एक कंप्यूटर में होता है, जबकि डोमेन एडमिन का इंटर डोमेन में होता है. देन लोकल एडमिन का ओनली लोकल मशीन में होता है, अकाउंट लोकेशन, एंड डोमेन एडमिन का एक्टिव डायरेक्टरी में होता है. एंड local admin have control limited, and domain have control full, like organization. देखो basically local administrator में क्या होता है? If you manage a computer in work group, that time only your local administrator can handle your computer, but that is centralized, that is decentralized. But if you are a member of domain admin, you can manage any computer. You can manage server as well, you can manage client as well. I mean client OS as well. But both are working as what admin, that is working as a domain. Domain admin created in a domain, local admin created on a work. जैसे local users का profile है and local administrator का profile है, both are using which database? Both are using the SAM database. वही चीज तुम्हारा डोमेन एडमिन में जाओगे. डोमेन एडमिन और डोमेन यूजर्स, दैट यूजर वेयर लोकेटेड, दैट इज लोकेटेड इन एनटीडीएस फोल्डर, एंटी डायरेक्टरी सर्विस. दैट पॉइंट आल्सो यू हैव. ये पॉइंट भी तुम ऐड कर सकते हो. Okay sir. 6 नंबर आंसर. Work group. Work group, sir. Work group sir. Work group, because when a machine system, you can install Windows Server OS or you can install a client OS. Both are where work. Both are only work on the work group. Work group. By default system पहले से domain में नहीं जाए. Okay, that's always Yes, sir. remember. You can install any operating system, that must be available in where? That must be available in work group. Everyone clear? Please come. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the difference between work group and domain? Work group और domain में difference क्या है? Basically, work group, all computers are peers, or in domain, one or more computers are server, network administration, user control in security. All work group, only 20 computers are available. In domain, there can 100 or 1,000 computers are connected.
all computer must be one same network, same local network or subnet. But in domain, computer can be different or local network. Or in your group, is computer or user account in domain? User account were created, that also described coming in this box. Okay, sir. If you are managing work group, you are where you are creating user account. Your user account must be created in computer. But if you have a user account on domain, you can log on to any computer in the domain without needing an account. यदि तुम्हारा अकाउंट डोमेन के अंदर है तो तुम कोई भी कंप्यूटर से लॉग इन कर सकते हो, ये भी तुमको इस डिफरेंस में ऐड करना पड़ेगा. एंड वन मोर एडवांटेज इज आल्सो देयर. द सेकंड एडवांटेज, सेकंड डिफरेंस ऑफ द डोमेन. फर्स्ट एडवांटेज, one or more computers or server, a network administrator use server to control the security and permission, because whatever the changes are happening, that all are changes from the client side. तुम सर्वर साइड में कोई भी चेंजेस करो, वो कहाँ रिफ्लेक्टेड होगा? दैट इज रिफ्लेक्टेड टू द क्लाइंट साइड, व्हाटएवर द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम. लिमिटेशन तुम बाद में बता सकते कि यहाँ पे 20 कंप्यूटर, वहां पे हम थाउजेंड्स, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, वो तुम बाद में बता सकते. इन डोमेन हाई सिक्योरिटी, इन वर्क ग्रुप लो सिक्योरिटी, ये सब लास्ट में बता सकते हो. बट एट फर्स्ट यू विल डिस्क्राइब द फंक्शंस. Why company are using the domain? Why small organizations use the work group? That function must be discussed. Okay, Everyone clear? Please come. Yes, sir. Yes, sir. Any question from anyone? इस तरफ कोई किसी का कोई भी question, कोई doubt? No, sir. sir. No, sir. If all clear, tell me all clear. All clear, sir. Yes, Mic sir. सभी Yes, लोग sir. के लिए enable. Yes, sir. Yes, sir, clear. क्योंकि ये तुमको बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि तुमको बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछेगा. पहले तुमको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा. नाउ द मेन टॉपिक कमिंग गोइंग टू द एक्टिविटी. ये तो जस्ट इंस्टॉलेशन के टाइम जो बेसिक्स जो नॉलेज है, अप टू डोमेन ज्वाइनिंग तक, उतना दूर तक तुमको बेसिक क्वेश्चन आया. नो वन आस्क यू मोर क्वेश्चंस इन वर्क ग्रुप. वर्क ग्रुप तुमको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा. हाँ, ये जरूर पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क ग्रुप एंड डोमेन. इट्स ये जरूर पूछेगा, लेकिन ये नहीं पूछेगा बताओ वर्क ग्रुप क्या है या बताओ पीयर टू पीयर सर्वर क्या है. ये कोई नहीं पूछेगा. बट 90% the question is coming from 90% questions coming from the active directory. Active directory portion is very important, क्योंकि active directory से सबसे ज्यादा तुम्हारा conceptual question सबसे ज्यादा पूछा जाता है. मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ ताकि किसी का कोई भी थियोरी, कोई भी प्रैक्टिकल में डाउट है तो पूछ ले. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. तो मैं यहाँ पे सारे चीज डिस्क्राइब करेंगे. एक तो एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. इसके साथ साथ हम ट्रबल शूटिंग भी डिस्कस करेंगे, एंड साथ में तुम्हारा बैकअप एंड रिकवर का भी कंप्लीट करेंगे. पर इसका टोटल ड्यूरेशन मिनिमम 3 दिन का हो. ठीक है? ये टॉपिक जो है थोड़ा लेंदी है, जो एक दिन में पॉसिबल है. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir, Yes, clear. sir. और तुम लोग भी यदि प्रैक्टिकल करोगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा. किसके Okay, किसके sir. पास लैपटॉप है? मतलब कौन कौन, मतलब लैपटॉप के साथ एनेबल हो, एक बार हाथ उठाओ. ये सर, अब पहले जितना भी प्रैक्टिकल नहीं किया था बट आप आपसे करेंगे. थोड़ा एक्टिव होकर रेस्पॉन्स करो. एक्सक्यूज छोड़, क्या एक्सक्यूज नहीं लेना है हमको. मेरा लैपटॉप खराब है, मेरा भैया लेके चला गया, रैम कम है, स्लो है, वो सब अलग साइड में रखो. जॉब चाहिए, प्रैक्टिकल करो. जॉब नहीं चाहिए, जैसे चलो ऐसे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको डिस्टर्ब नहीं करें. लेकिन जो लोग एक्टिवली सीरियस हो कि सर हम अभी, हमको ऐसा पाथ बताओ जिस वजह से हम इजीली सक्सेस हो सकते हैं, तो वो लोग सिर्फ रेस्पॉन्स करो कि यस सर, मैं डेली अभी से प्रैक्टिकल स्टार्ट करें. Yes, sir. श्री चंदन, Yes, sir. तुमने पिछले वीक भी ज्वाइन किया था ना?
Yes, sir. Yes, sir. कैसा कॉन्फिडेंस रहा? Sir, good, sir. हम्म। और जिस वे से मैं जाता हूँ ना, मतलब जिस पाथ से हम जाएंगे, मतलब मान लो अभी जैसे मान लो बेसिक हो गया, बेसिक के बाद एक्टिव, एक्टिव डायरेक्टरी का एकदम जीरो से लेके एडवांस। ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ के चला जाएंगे, नहीं। एक्टिव डायरेक्टरी के साथ साथ तुमको एक्टिव डायरेक्टरी का ट्रबल शूटिंग नॉलेज भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आधा आधा पढ़ के छोड़ दिया और कंपनी में तुम जॉब को क्रैक कर लोगे, इतना इजी नहीं। यस साथ सर। में प्रैक्टिकल भी करो। प्रॉब्लम तो है, तो प्रॉब्लम किसका नहीं, प्रॉब्लम सबका है। प्रॉब्लम के लिए तो है, तो क्लास, इस क्लास किसके लिए असाइन किया है? इंटरव्यू प्रिपरेशन से, ताकि तुम्हारा कोई डाउट हो तो वो इजीली क्लियर कर सको। अच्छा, मैं वन बाय वन बार चेक कर लेता हूँ। रवि कुमार ऑनलाइन? यस सर। एक बार दो, मतलब सब लोग एक बार, मतलब फ्रीक्वेंट वे से बता देना, लैपटॉप है या लैंग्वेज कौन सा सी भी है, दोनों चीज बता देना। लैपटॉप है तुम्हारे पास? यस सर, ऐसा। लैंग्वेज? इंग्लिश एंड हिंदी। वो तो, यस सर, बहुत। क्योंकि बहुत लोग लैंग्वेज के कारण चुपचाप रहते हैं, तो भाई मुख से जब तक खोलोगे नहीं, मतलब मुख जब तक बात, मतलब तुम्हारा साइड से रेस्पॉन्स नहीं करोगे, दैट वे कम्युनिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र साइनी, यस लैपटॉप। दोनों एक साथ कम, मतलब दोनों एक साथ बता दो। लैपटॉप है लैंग्वेज सर। भी साथ में बता। लैंग्वेज हिंदी। ओनली हिंदी और बोथ? बहुत कर। लोकेश? Yes, sir. Laptop and language both. मिथिलेश कुमार? यस सर, लैपटॉप है और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश पढ़ रखा मैंने लेकिन। आकाश? यस सर, लैपटॉप भी है और लैंग्वेज भी बहुत। बहुत रजनीश? सर। अक्षय? वासुदेव? अनूप? अमृत मिश्रा? Yes, sir. I have laptop and compatible in both language. किशोर बारी? Yes, sir. Laptop, both language. बेलिट, बेलाइट जीवन? यस सर, लैपटॉप सर, कंफर्टेबल इन इंग्लिश सर। ओनली इंग्लिश? ओनली इंग्लिश। श्री चंदन? बोथ? Both, sir. Both. किरण भोसले? किरण भोसले? यस सर, लैपटॉप हम ऑल्सो लोग एंड बोथ लैंग्वेज। हम लोगों का जर्नी एक एक दो दिन का नहीं है, हाँ। हम लोगों का जर्नी 2 हफ्ता का है। यस संजय? यस संजय? राहुल? No laptop, sir. Both language. त्रिपर्णा मुखर्जी? पारमिता चक्रवर्ती? ज्योति? यस सर, लैपटॉप है और बोथ लैंग्वेज। यदि किसी का मतलब ब्रेकफास्ट नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट करके बैठ जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे वॉइस निकालो ताकि लगे कि हाँ तुम्हारा एनर्जी है। अभिजीत? अभिजीत? अंकित? यस सर। हम्म। यस सर, लैपटॉप, आई डू हैव लैपटॉप। बोथ? हाँ सर। जी yes। सर वो सुश्री? सर। सर नो रिप्लाई लिखा है आपने। सुश्री, सृष्टि, सॉरी, सृष्टि कदम? कृष्णा फर्स्ट क्लास?
सर एक बात पी पूछना अजय, था। पी अजय हेलो ऑल्सो सर। प्लीज रिप्लाई। सर हाँ आप सर। आते हो क्या? फर्स्ट क्लास है क्या सर मेरा? हेलो। हेलो हाँ सर। हेलो। कृष्णा वाट। हाँ कृष्णा सर, मेरा नाम अजय सर, ये मेरी ब्रदर मोबाइल सर, वही का। अच्छा, पी अजय तुम्हारा नाम है, कृष्णा का? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक। यू ऑल्सो यस एंड बोथ, राइट? यस सर, बहुत यस सर। सर बोलो एक बोलो बात पूछना था। बोलो सर बोलो। हिंदी में आप तो कंफर्टेबल है सर। सर बोल रहे थे आज क्या फर्स्ट क्लास है क्या सर? क्योंकि हम लोग हमारा तो फर्स्ट क्लास है आज। ये फर्स्ट टॉपिक। ओके न्यू सर, बैच से हो मतलब या इससे ओल्ड पहले बैच कुछ से नहीं हो? होगा ना सर? न्यू बैच से हमारा हो पता या नहीं ओल्ड सर, बैच हमारा से हो? लास्ट वीक ही आईटी खत्म। न्यू बैच ही है हम लोग का। ओल्ड बैच तो नहीं है, मतलब रेगुलर चल रहा है सर हमारा। नहीं, एक्चुअली ये इंटरव्यू प्रिपरेशन का बैच। सर पता नहीं, हम मुझे दो दो क्लास असाइन हुआ है सर आज से ही, पता नहीं क्यों। हम्म Sir, this is the first class of interview preparation. या दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आईपीएस। और ये सर इस तो वीक देखो, चलेगा या 2 वीक? 2 वीक 2 वीक, इसीलिए तो मैंने इतना डिटेल्स ले रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग का जर्नी एक दिन का नहीं है, 2 दिन, तो पूरा 2 हफ्ता का है। तो देखो, बेसिकली मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ऑल इज वेल। Hello sir, Yes, sir. I am Paromita. Yes, sir. बताओ। Sir, सर तो, मेरा लैपटॉप है। अच्छा, लैंग्वेज बोथ, बट प्लीज रेस्पॉन्स करो। हाँ, yes, sir. सर नेटवर्क इशू से आपका। ठीक है, कोई बात। बट प्लीज रेस्पॉन्स करने से क्या होगा ना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, एकदम जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, एकदम इंस्टॉलेशन से। सर्वर सभी लोगों का डाउनलोड किया हुआ है? Yes, sir. एवरीवन Yes, डाउनलोडेड sir. ISO फाइल ऑफ सर्वर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. Yes, sir. एक काम सब लोग करोगे यदि पॉसिबल है। टुडे डिस्क्राइब माय साइट। मैं मेरे साइड से आज डिस्क्राइब करो, कल से तुम लोग डिस्क्राइब करो। Okay, sir. Okay, sir. Okay, ओके? sir. Yes, sir. ओके सर। Okay, sir. एक दिन मेरा साइड से, एक दिन तुम्हारा साइड से। मैं पूरा 2 घंटा नहीं, सिर्फ तुम्हारा साइड से 30 मिनट ले, 30 मिनट्स। एटलीस्ट एक कैंडिडेट 1 by 1 शेयर करना। मान लो किसी ने आज, कल मान लो रवि ने शेयर किया, तो नेक्स्ट दिन Yes. सुभाष ने शेयर करेगा, उसके दिन लोकेश एंड मिथिलेश ने शेयर करेगा। इस तरह से चलोगे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, जिस टाइप में तुम्हारा प्रैक्टिकल का इशू आ रहा है, वो भी रिजॉल्व। एवरीवन अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। एग्री हो ना? Yes, sir. मतलब ऐसा तो नहीं है कि यस सर सर। मैं तो आज लैपटॉप शेयर नहीं कर सकता, ये एक्सक्यूज मत दिखाओ। Yes, sir. यदि एक्सक्यूज दिखाना चाहते हो, पहले से ही बता दो कि सर हम डेली प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, मेरे लिए पॉसिबल है। सर अगर एकदम मैं लैप जीरो लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है? हो सकता है? बोलो। हाँ सर हाँ, मेरे लैपटॉप में ना रैम की प्रॉब्लम है। देखो, यदि ये तुम्हारे पास विंडोज सर्वर 2022 है, तो यस तुम्हारा सर। 8 GB रैम, 16 GB रैम कंपलसरी। और यदि यस नहीं है, तुम बोलोगे सर मेरे पास 1 GB है, 2 GB है, 4 GB है, तो यस सर। 2012 यूज करो। ठीक है? 2012। विंडोज सर्वर 2012 का, ओके क्योंकि सर। 2012 का जो वर्जन है, वो यस सर। स्लो लैपटॉप के लिए कॉम्पेटेबल है। यदि ओके बोलोगे सर। सर हमको लिंक भेज दो, मैं लिंक भेज देता हूँ, चारों लिंक भेज देता हूँ। 10, ओके सर। 7, सर्वर 2022 एंड 2012, जिसका जो ओके। सपोर्ट करे वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? ओके सर। ओके। बट प्लीज मतलब एक्टिव हो जाओ। और आई होप सभी लोगों का ये क्या नाम है उसका,
जो विंडोज का मैंने बैच किया था उस टाइम तुम लोगों का विंडोज का सारे वीडियो है तुम्हारे पास, Yes, डे sir. 1 से लेके, Yes, sir. तो Yes, वो sir. वीडियो Yes, sir. रिवाइज करना शुरू करो। जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्वेश्चन है कि सर आप ये एक बार बता दो, हमको ये समझ में नहीं आया, रिकैप कर लो थोड़ा सा। रिकैप करने से क्या होगा ना, रिवाइज हो जाएगा, और रिवाइज होने से क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जितना भी सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑल आर न्यू। इस इंटरव्यू Okay, sir. प्रिपरेशन में कोई ओल्ड टॉपिक होगा नहीं, सब कुछ ही नया है, जो तुम लोगों को इंटरव्यू के लिए 100% गारंटीड क्वेश्चन। ठीक है, बस Yes, sir. सब लोगों के लिए नहीं मिले। Yes, ये sir. तो आपने सेकंड लिंक सेंड किया है, ये 4 GB रैम लैपटॉप में चल जाएगा? हाँ हाँ, आराम से। ओके। यदि तुम्हारे पास स्लो लैपटॉप है तो ये विंडोज सर्वर 2012 डाउनलोड करो। सर 2012 में तो 2 GB रैम ले रहा है मिनिमम सर। 2 GB दे सकते हो, 1 GB भी दे सकते हो, 1 GB में भी आराम से चल जाएगा यदि तुम्हारा SSD है तो। हार्ड डिस्क है तो नहीं चलेगा भाई, हार्ड डिस्क के लिए तो भाई कोई रास्ता है नहीं। रैम के लिए तो चलो मैनेज कर लोगे, क्योंकि रैम SSD दोनों आपस में मैनेज कर लेगा यदि SSD है। एटलीस्ट 128 GB SSD होगा तो भी चलेगा, लेकिन हार्ड डिस्क मत यूज करो। यदि हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को निकाल दो लैपटॉप से, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी तुम यूज करो। ठीक है बस। और ये जो विंडोज 7 का लिंक दे रहे, विंडोज 10 का लिंक दे रहे हो ना 5.7 GB, दैट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर WDS। यदि तुम वो 7.4 GB या तुम और भी कोई वर्जन यूज करोगे जो WDS के लिए काम नहीं करेगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यदि किसी का क्वेश्चन है सर हमको क्या ये कंपलसरी है, मैं मेंशन कर दिया हूँ। एंड व्हाई? बिकॉज ESD फाइल डज नॉट सपोर्ट। Which file only supported only? सर हमारे इंटरव्यू में क्या मतलब हमें प्रैक्टिकल भी कराया दिखाया बोला जाएगा क्या करने के लिए? एकदम स्टेप पूछता है। तो सर हमें क्या स्टेप बताना है या फिर स्टेप करके दिखाना होता है? स्टेप करके दिखाना नहीं है, स्टेप तुमको बताना है, डिस्क्राइब करना है कि सर पहले हम, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा हाउ टू जॉइन वर्क ग्रुप टू डोमेन, तो पूरा एकदम एकदम पहले से डिस्कस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लॉग ऑन टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, then go to sysdm.cpl, then we first check the system name is changed or not. If it is not changed, then we have to change the name and then click on domain। तो इस तरह से हर एक स्टेप बताना हो, नहीं तो इतना डिफरेंस क्यों है भाई? किसी को 2.4 मिल रहा है, किसी को 3.4, किसी को आवाज 4.5। कंपनी 1 लाख का सैलरी का डिफरेंस क्यों दिखा रहा है? वाई? ऐसा क्या है उसमें जो सेम कंपनी में है, किसी को 2.4 अब किसी को 2.6, किसी को 2.8, क्यों इतना डिफरेंस क्यों है? बताओ बताओ ऑब्वियसली सर क्यों डिफरेंस? जिसको नॉलेज की वजह से। सर एकदम जिसको ज्यादा नॉलेज। प्रैक्टिस मिल Yes, रहा sir. है Knowledge वो- हमारा प्रीवियस डिग्री से कोई लेना देना नहीं, वो प्रीवियस डिग्री से करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा। सिर्फ यही नॉलेज इंपॉर्टेंट है जो तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ये जो 45 डेज में तुमने जो सीखे हो। ठीक है, Yes, sir. सर तो जो मैंने सब कुछ WDS लिंक दे दिया, मैंने सब कुछ लिंक दे दिया। तुम लोग एक बार चेक करके कंफर्म कर लो कि हर लिंक काम करेगी। सर WDS जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए विंडोज 7 और 12 सर्वर का 2012 लेने से होगा तो 2012 एंड विंडोज 7 से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन तुम्हारा जो सेटिंग्स होगा ना, सेटिंग्स में बायोस एनेबल रहेगा विंडोज 7 पे। विंडोज हाँ 7 तो के लिए बात UEFI सेटिंग्स एनेबल नहीं हो। नहीं डॉट चेक EST कर फाइल लेना, नॉट सपोर्टेड जो WDS इसमें विंडोज 7 में सपोर्ट करेगा तो चेक चेक कर लेना WIM फाइल है या ESD फाइल। सर ये विंडो 10 वाली फाइल भी यूज कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हो। अगर जैसे सर रैम 4 GB है लैपटॉप में? नहीं 4 GB में विंडोज 7 ही चलाओ, क्योंकि सर्वर और 7 दोनों चलाओगे ना, तो एक साइड सर्वर 1 GB रैम यूज करो, विंडोज 7 के लिए 1 GB रैम यूज करो, सर और 8 2 GB GB है तो होस्ट मशीन के लिए रखो। ठीक है, ओके सर, ओके।
और कोई तो नहीं मतलब बोल सर सकता ये सर स्लो वाला हमको कर लो। लिंक नहीं मिला। सबको सब कुछ लिंक मिल चुका है, सब कुछ दे दिया। देखो विंडोज 7 का दे दिया, विंडोज सर्वर 2012 का दे दिया, विंडोज 2022 का दे दिया, वीएम और वर्कस्टेशन का दे दिया। और कुछ लिंक चाहिए तो बताओ। प्रैक्टिकल के लिए डिले मत करो प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम डे वन। No, क्योंकि sir, अभी भी query. तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास। यदि किसी का क्वेश्चन है सर हमको विंडोज में ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, आप दोबारा करके दिखाओ, मैं आपको नेक्स्ट दिन करके दिखाएंगे। एक्टिव रहो भाई, एक्टिव रहोगे तो तुम्हारा कोई जॉब से कोई रोक नहीं सकता। कौन कौन एग्री हो मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, I am agree. सर Yes, sir. लेजी के लिए दूसरा क्लास है, लेजी के लिए ये क्लास तो भाई सपोर्ट ही नहीं करेगा। 2 दिन अटेंड करोगे, 3 दिन में लेफ्ट आउट भाई। आई होप सभी लोगों को पता है जो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुका था। अब क्लियर हुआ? साइलेंट इज इक्वल टू व्हाट? Zero. साइलेंट इज इक्वल जीरो टू व्हाट? साइलेंट इक्वल टू लो पैकेज। बताओ। तुमने तो इतना सारे बैच किया, मेरा बैच तो 1-2 हफ्ता का था। अब तुमको समझ में आया तो साइलेंट इज इक्वल टू व्हाट? Zero. लो पैकेज। जीरो। समझना है, कुछ करना है भाई, रेस्पॉन्स तो करना पड़ेगा। ठीक है, Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. सर आपका स्क्रीन डिस्टर्ब पॉज हो नहीं गया। करेंगे, जस्ट ओनली बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो थोड़ा रेस्पॉन्स करो। एग्री? Yes, sir. ओके Yes, सर। sir. जी सर। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जस्ट डिप्लॉइंग द सर्वर, सबसे पहले मैं सर्वर इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी बोलोगे सर क्यों? क्योंकि तुम डोमेन कॉन्फ़िगर करोगे, डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करोगे। ये सारे चीज के लिए तुम्हारा क्या चाहिए? सबसे पहले एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। Because if you know about how to reset DSRM password, how to join workgroup to domain, how to create user in Active Directory, how to reset password in Active Directory, these all questions are very common for all the interview. किसी ने इंटरव्यू अटेंड किया था? एनीवन? एक भी इंटरव्यू जो पहले अटेंड किया हो, या फर्स्ट टाइम, या कोई हाँ ऑफ सर। कैंपस या आउटसाइड से कुछ जो हाँ हाँ सर। सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या यस सर। इंटरव्यू का? बताओ। यस सर। No, sir. No, sir. नो सर। अच्छा, सबसे जो किया था पहले तो थोड़ा इंट्रो क्वेश्चन शेयर करो। सर, सबसे पहले तो इंट्रो पूछता है, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जो प्रोजेक्ट आपने कॉलेज में बनाया हुआ होता है। और उसके बाद फिर अगर आपने नेटवर्क के लिए अप्लाई किया तो नेटवर्किंग, और अगर आपने डेवलपर के लिए अप्लाई किया है तो फिर वो आपको कोडिंग रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे उसमें। फिर अगर और फिर आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट में जो बनाया है सबसे ज्यादा वो क्वेश्चन सिंगल। कहाँ से पूछा जाता है? स्किल से। जो तुम्हारा रिज्यूमी है, उस रिज्यूमी हाँ में जो सर। जो स्किल्स तुम मेंशन करके रखोगे वही तुमको क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। हाँ सर। और इस पर्टिकुलरली एक्टिव डायरेक्टरी रोल में यदि जाओ, एज एन यूजर सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या कोई भी रोल में जाओ, सबसे पहले इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या आइडिया है, तुमने पिछले क्या क्या काम किए थे, व्हाट नॉलेज यू हैव। ये नॉलेज के बारे में जरूर पूछेगा कि तुम्हारा बेसिक नॉलेज क्या है, या तुम इंडस्ट्री में क्या क्या काम किए। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके सर। कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन रिलेटेड भी पूछेगा। आउटलुक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आउटलुक तो कॉन्फ़िगर आउटलुक कैसे में क्या करोगे, पूछेगा सर? मेल कैसे कॉन्फ़िगर मतलब करोगे, दिस ऑल टॉपिक वी आर कवर्ड हियर। ये सारे चीज हम लोग इस पर्टिकुलर आईपीएस में कवर ओके करें। सर। सर आउटलुक क्या क्वेश्चन ओके, होता है सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल? बस सब कुछ ओके सर, बताएंगे। आज इसीलिए तो पूरा जर्नी है ना, 2 हफ्ता का जर्नी है। 2 हफ्ता प्रेजेंट रहो, सब कुछ समझ में आ जाए। Set first where I go. First of all, we go to typical and then click on next. What I installing here? I just installing here Windows Server 2022. हम सबसे पहले किसको इंस्टॉल करेंगे? 2022 को इंस्टॉल करें। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये जो है, ये पार्टिकुलरली हम क्या एज ए टाइप करेंगे? इट्स वर्किंग एज माई सर्वर वन। ये सर्वर वन किसका काम करेगा? दैट इज वर्किंग इज माई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्रिएट कर दें। क्या देंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तुम कोई भी ड्राइव बनाओगे ना, तो पहले देख लेना तुम्हारा कहाँ पे स्पेस खाली है। इन सी 3 GB फ्री,
and D drive have 197 GB. In this drive, I go to create a fresh folder. Under the fresh folder VMR. Under the VMR, I'm creating a fresh folder which is AD server. This location में हम लोग क्या कोई लोकेशन में फोल्डर देते भाई, पहले तुम ये लोकेशन decide the location where your ISO file is available, where your virtual machine folder is available, and where your backup file is available. Everyone clear, please? Yes, sir. Folder फिर तुम फाइल को, is the very easiest way to store your all files. Click on OK. तो ये मेरा कौन सा लोकेशन है? This is my AD server location. What is the location? D drive VMR AD server. Then click on कितना GB हम allocate करेंगे? Just only allocating here particularly 100. You can choose C drive. If you have free space in D drive, you can choose D drive. If you have free space in E drive, then you can choose E drive. Clear? Yes, sir. Clear? Yes, sir. So what GB I assign here? I just assign here 100. If you tell me why, sir, because whatever the हेलो सर। सर मतलब हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हम लोगों को ये बोला गया था कि जब हम लोग असाइन करेंगे तो 10 GB असाइन करेंगे या 5 GB, क्योंकि ज्यादा असाइन करने से हमारा मेन प्राइस से ले रहा है, तो मैं पहले तो जितना कम हो सके उतना हम लोग असाइन करेंगे। यहाँ पे जब तुम 100 GB असाइन कर रहे हो तो यहाँ पे ऑलरेडी तो 100 GB फ्री है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तुम बोलोगे सर यहाँ पे मैं 127 GB फ्री है, मैं उधर वर्चुअल मशीन में 200 GB असाइन करूँ, तो ये वाला तो रेट होगा। स्टोरेज कुछ पॉसिबल होगा, सर्वर स्लो होगा। सिस्टम बचाओगे तो सिस्टम, होस्ट सिस्टम को बचाओगे तो सर्वर स्लो होगा, और सर्वर स्लो ये होगा तो मतलब ऑल्टरनेट में कोई ना कोई स्लो होगा। हाँ सर, तब तो स्लो होगा ही, मतलब बताओ। स्टोरेज लेंगे इसलिए हम पूछ रहे ऐसे यदि तुम माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेड वेब मतलब रिकमेंडेड साइज देखोगे तो 32 GB एलोकेट किया। लेकिन यदि तुमको मल्टीपल सर्विसेज डिप्लॉय करना है तो क्या तुम 32 GB से मैनेज कर लोगे सर्वर को? नहीं सर, तब तो ऑब्वियसली बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमने WDS प्रैक्टिकल के टाइम WDS के लिए अलग ड्राइव असाइन किया था, क्यों जरूरी था? क्योंकि वो रिकमेंड स्टोरेज जरूरी है। और यदि तुम बोलोगे सर हमको सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी को ही कॉन्फ़िगर करना, तो मिनिमम कितना GB स्टोरेज चाहिए? ओनली 32। ठीक है। इसीलिए तो मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले तुम ड्राइव को देख लेना, 8 GB स्पेस है। क्लियर? प्लीज मैम। Yes, sir. Can I continue? Yes, sir. Yes, sir. So Barego, here I mentioned 100 GB store virtually as a single file, then Barego click on 2 GB RAM, then click on finish write.
We must selected here particularly use ISO file. What ISO file selected here? I just selected here particularly ISO file of Windows Server. What server I'm selecting here? Windows Server 2020. Display, what I do, display turn off 3D. Option advanced, what I'm selecting, I just selecting here enable secure boot EVFI. Then click on OK, because this Microsoft recommendation. If you tell me where it is mentioned, you can see here also mentioned by Microsoft. What is enable? EVFI 2.3.1 system based firmware that supported what boot? That supported secure boot. Who tells that? Who tells that? Microsoft. This is the other requirement of what? Other requirement of Windows Server. So that's why selecting. Then power on this virtual machine. Left click on this VMware logo. कर्सर पहले गायब होगा. Then press any. इसी के चलते बहुत लोगों ने अभी तक इंस्टॉलेशन भी नहीं की. Sir, when I try to turn on my virtual machine in EVFI, Windows cannot install. I am facing issue. Who replied? They are already resolved the issue. And who not replying? They still facing the same issue. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये ना बोलने के कारण तुम सुनाओगे बहुत. मेरा लैपटॉप खराब है, मैं करना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी बाहर में हूँ. ये बोलने से कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा तुमको? बताओ. No, sir. No, sir. मान लो तुमको रेफरेंस मिल गया इविजन से. इविजन में तुमको बोलते भाई जाओ इस लोकेशन में इंटरव्यू है, तुम इंटरव्यू अटेंड करो. तुमको सब कुछ हो गया, इंटरव्यू में भी चला गया, इंटरव्यू क्रैक भी हो गया. पर जब तुम जॉब करोगे उस टाइम तो भाई तुमको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कि तुम प्रैक्टिकल के बिना तुम इंडस्ट्री में जाके कंटिन्यूअसली रह पाओगे. पहले 2-3 महीना वार्निंग मतलब ट्रेनिंग देगा. एक महीना 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है. 1 मंथ ट्रेनिंग में यदि तुमने समझ गया तो अच्छा है, और यदि नहीं समझा तो 2-3 महीना के बाद वार्निंग लेटर आ जाए. अच्छा है फिर. ठीक है. हाँ सर. Yes. कंपनी को 10 करोड़ देगा, तुमको 1 लाख मिलेगा. ये रियलिटी है. ठीक है. तुमने कंपनी को यदि 2 दिन बोल देना सर मेरा तबीयत खराब है, मैं 2 दिन नहीं आ सकते, तुम देखोगे उस महीना सैलरी भी रिसीव नहीं होगी. दैट इज द रियल. ठीक है. इसीलिए थोड़ा रेस्पॉन्स के साथ, एक्टिव के साथ, माइक के साथ एंड प्रैक्टिकल के साथ. ठीक है. तुम यदि छुप के प्रैक्टिकल कर रहे हो तो तुम साइलेंट से भी तुमने सैलरी को आराम से क्रैक कर लो. और तुमने साइलेंट है और कुछ नहीं बता रहे हो, प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं कर रहे हो, तो तुम छुप से लॉस हो रहे हो. समझ में आ रहा है? डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि तुम लोग तो बच्चा नहीं हो. यूर ऑलरेडी कंप्लीटेड बीटेक एमटेक, उसके बाद तुम लोगों ने आया. आई होप थोड़ा बहुत तो नॉलेज सभी को होगा इंडस्ट्री का मैटर. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन वर्सेस डेटा सेंटर इवैल्यूएशन. हम डेटा सेंटर इवैल्यूएशन को क्यों चूज करते हैं? बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज 2 टाइप ऑफ वर्जन्स आर अवेलेबल. वन इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वन इज द GUI वर्जन. तो ये जो सेकेंड एंड फोर्थ है ये तुम्हारा GUI वर्जन, और जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये तुम्हारा CLI वर्जन है. यदि तुमको स्मॉल आर्किटेक्चर को मैनेज करना है, वेयर यू हैव 70 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, 150 कंप्यूटर, you can manage with the standard evolution. But when you have large organization, you have 500 computer, thousands computer, 2000 computer, you must select the what version? You must select the data center version, data center evolution, desktop experience. Clear everyone? Please come. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सर फर्स्ट और जो थर्ड सर बात पूछना था सर, जब मतलब एक ही ऑप्शन का मतलब एक ही चीज का दोनों ऑप्शन क्यों रहता है सर? ये तो माइक्रोसॉफ्ट से पूछना पड़ेगा तो कि आपने ये 4 वर्जन क्यों लॉन्च किया. अब तो 2 ही वर्जन लॉन्च करते थे, डेटा सेंटर और डेटा सेंटर इवैल्यूएशन. नहीं सर वो नहीं, मतलब सर जैसे सर क्योंकि लाइसेंस का अलग अलग कॉस्ट है भाई. डेटा सेंटर का जो लाइसेंस है वो बहुत इंक्रीज मतलब थोड़ा इंक्रीज का रेट.
किसी का उतना एफोर्ट नहीं कर पाएगा वो इंडस्ट्री, तो वो स्टैंडर्ड को यूज करेगा। यदि तुम्हारे पास 100 कंप्यूटर है तो भाई तुम 100 कंप्यूटर के लिए थोड़ी 1000 रुपया 1000 कंप्यूटर का लाइसेंस थोड़ी खरीदोगे। यदि तुमको 100 कंप्यूटर का लाइसेंस से मैनेज हो जा रहा है तो तुम 1000 कंप्यूटर्स को मैनेज करने का लाइसेंस तुम क्यों खरीदोगे? क्या जरूरी है? नंबर ऑफ रिसोर्सेस, नंबर ऑफ बिल, राइट। तुम 2 घंटा Yes, sir. कोई स्टोरेज यूज करोगे, 2 घंटा का बिल दोगे। तुम 24 आवर्स का बिल थोड़ी दोगे? ऑब्वियसली नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट वर्सन, ये जो स्टैंडर्ड वर्सन ये किसके लिए है? दैट इज इफ यू हैव अ स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल डेटा सेंटर, जहां पे तुमको स्मॉल कंप्यूटर है, मान लो 50 कंप्यूटर है, 70 कंप्यूटर, 70 कंप्यूटर है, 90 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है, उसके लिए ये सही है। बट इफ यू मैनेज n number of servers, n number of computers, n number of laptops, n number of virtual machine, Hyper-V, VDIs are there, then तुम किसको यूज करोगे? Obviously you can use these data center versions. Everyone clear this? Then I Yes, Sir. sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Sir. सर और यदि बोलोगे सर हम टेक्निकली कुछ बताओ, तो टेक्निकली बहुत सारे चीज है जो तुम्हारा Hyper-V के साथ कनेक्टेड। तो पहले मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, उसके बीच में मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ। So where I go, just click on accept the license, then click on next, then click on custom. Here we need to convert MBR to GPT. यहाँ पे हमको MBR से GPT में convert करना compulsory. That is compulsory part. So where I go, first of all, Disk part. this part. Part. Next, List disk. list space disk. Then where I go, Selecting zero. Select this zero. select this Disk. zero. Then where I go, Clean. clean. Plain. Then where I go, Convert convert GPT. Convert GPT. GPT. भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, if you forgot MBR no problem, तुमने MBR कन्वर्ट करना भूल गया चलेगा, लेकिन डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट व्हाट, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट द जीपीटी। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. क्योंकि जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। हाई कॉन्फ़िगरेशन, मोर परफॉर्मेंस। तो लिस्ट डिस्क इज इक्वल टू व्हाट, स्टार इज इक्वल टू जीपीटी, फर्स्ट एग्जिट फ्रॉम दिस पार्ट, अगेन एग्जिट फ्रॉम सीएम। एवरीवन क्लियर प्लीज? तो ये Yes, कौन सा Yes. पोर्शन है? दिस Yes, इज sir. द वे टू कन्वर्ट एमबीआर टू जीपीटी बिफोर विंडोज इंस्टॉल। एवरीवन क्लियर हाउ टू कन्वर्ट? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाउ टू Yes, sir. कन्वर्ट एमबीआर टू जीपीटी बिफोर विंडोज इंस्टॉल। Installation. चेंज। चलो एक तरह से एमबीआर से जीपीटी कन्वर्सेशन भी तुम्हारा रिपीट हो गया। Then where you go, first exit, this exit from where? Exit from CMD, then exit from where? Then exit from the install, just next and install, continue installation. Is it possible to change the installation speed? Just press Shift plus F10. Yes, sir. Here Yes, also sir. just going to type what? Just go to type here Task task manager. manager. After task manager, where you go, just click on process step, Yes. then setup.exe, right click, .exe. then click on set party, then click on real time, then click on change party. Setup.exe, set party, real time, then change party. Then click on close and then click on close. Clear everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्लोन तो सबको पता है, क्लोन का प्रैक्टिकल किया था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, नहीं क्या सर? हुआ था भाई? हुआ था सर। कौन कौन मेरे अरे बैच से भाई नहीं तो था? वो नॉट फ्रॉम माय बैच, प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि मैंने सभी को डिस्कस किया था, क्लोन के लिए अलग सेपरेट क्लास भी रखा था। Yes, सर sir. हम लोग नहीं थे सर आपके बैच। एब्सेंट होंगे तो मेरा रेस्पॉन्स, सर हम बिकॉज लोग आई आपके ऑलरेडी बैच में डिस्कस absent इन नहीं द थे। 3rd to 4th क्लास, 3 और 4 नंबर में मैंने क्लोन डिस्कस सर मतलब Yes, sir. वो है कि हम लोग आपके बैच से नहीं थे। किया। पारामिता तो मेरे बैच में था, या तुम और दूसरा पारामिता हो? क्योंकि नाम तो बहुत कॉमन है सभी का। मिथिलेश, अरे वॉयस के साथ चलो भाई, यस सर। नहीं बोलने हुआ में है कुछ सर। प्रॉब्लम है क्या? नो सर।
नहीं सर, ब्रेकफास्ट हमारे किए लिए हो ना? बनी था ये प्रोग्राम। सर ये हमारे ब्रेकफास्ट बैच किए में हो था ना सर, सब लोग? मुझे समझ रहे थे। पहले ये बताओ, ब्रेकफास्ट किए हो कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अभी तो बोलने नहीं। में कुछ प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर, नहीं No, sir. तुम लोग ऐसे सुना रहे हो जैसे लग रहा है कि अभी अभी जस्ट गुड नाइट, मतलब नाइट शिफ्ट करके आए हो। थोड़ा एक्टिव करो, एक्टिव रहो भाई। ए फॉर एप्पल दो 10 दो बार क्लासेस बोला था तभी तो KG1 पास हुआ। ये तो 10 बार बोलना चाहिए। सर, दो दो क्लासेस साइन हो गया ना सर, तो समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद फिर हम लोग का एक का क्लास है। ये जो मैं पहले से डिस्क्राइब किया हूँ, क्या तुमको कोई भी हाँ सर। डाउट फील हो रहा है अभी? ये जो इंस्टॉलेशन सर में ये डिस्कस कर रहा था। थोड़ा सा ना लेट से ज्वाइन किए थे, तो सर स्टार्टिंग में जो आपने बताया है ना इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें सर डिफरेंस बिटवीन लेगेसी और यूईएफआई का नहीं समझ में आया था सर, तो वो सोचे अच्छा, थे लास्ट में तो पूछूं। ये तुम्हारा पहले बैच में नहीं हुआ है? कौन सा सर, क्लोन वाला? नहीं सर, नहीं हुआ है हम लोग। ना ना ना, क्लोन नहीं, ये जो लिगेसी तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वही पे तो। ये सर जो लिगेसी यूईएफआई वाली, हुआ है, लेगेसी नहीं हुआ है, लेगेसी नहीं हुआ है सर। कौन सा अच्छा है आज के मार्केट में? सर वो तो पढ़ेंगे तो बता देंगे सर। बताओ, तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो चीज नहीं पता तो बोलोगे ना कि सर सर आई डोंट नो। लीगेसी अगर अगर सर नॉर्मल टर्म में समझे तो लीगेसी वो होता है ना सर, जो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहता है। हाँ, और यदि यूएफआई तुम का सर, जनरेशन की बात करोगे, जनरेशन की बात करोगे तो पहले तुमको जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2 का क्लियर होगा कि जनरेशन 1 और जनरेशन 2 किसके अंडर में आता है। जस्ट रीड दिस लाइन। मैंने बोला ना कि यदि तुमको डाइजेशन ठीक से करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? रेस्पॉन्स करना। हमको यदि हाँ कोई सर। चीज नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे? सर आई डोंट। इतना तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बताओ। सर बोल तो रहे हैं Yes, सर sir. इतना डायरेक्ट। बोल तो सर रहे हैं। जनरेशन गुस्सा टू। गुस्सा से बोल तो रहे हैं या मतलब कूल से बोल रहे सर गुस्सा में क्यों बोलेंगे सर? हैं? नहीं क्योंकि तुम सर। फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना मेरा, इस बैच में बहुत हाँ डिस्टरबेंस सर। होगा। देखो बाकी लोगों से पूछ। सर उसी मतलब से सीखना है। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया होगा सर, उसमें से सर सब ना का पहले ही होगा, क्योंकि ये लोग हम लोग के साथ हैं। ठीक है, बताओ, पढ़ो इस लाइन को पढ़ो। सर जनरेशन टू भी virtual machines use the UEFI based boot architecture rather than the इसमें क्या byte based तुमको, एक architecture. मिनट रुको रुको, इसमें क्या समझ में है कि जनरेशन 2 और सिक्योर बूट और यूएफआई बूट वो दोनों सेम कैटेगरी में? इज इट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. बस यहाँ पे फिल्टर मत लगाओ, यहाँ पे माइक के साथ फिल्टर मत लगाओ, ठीक है प्लीज। देन रीड दिस लाइन। Generation 1 virtual machines compared to Generation 1 virtual machines. Generation 2 ना, virtual machines might रेदर have देन improved रेदर देन rather than बायोस बेस्ड BIOS. आर्किटेक्चर यूज्ड बाय जनरेशन 1 Generation 1. VMs। तो legacy जनरेशन 1 बायोस बोथ आर द सेम। इज इट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. क्लियर? अंकित बताओ। क्वेश्चन अंकित का है, रेस्पॉन्स किसी और का आएगा तो डाइजेशन ठीक नहीं हो। नहीं आया अच्छा से सर। रेस्पॉन्स। जो बायोस के अंडर में आता है, बायोस लिगेसी एंड जनरेशन 1 बोथ आर सेम कैटेगरी। इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो अभी अंकित चुपचाप है, रजनीश रिप्लाई कर। सर नहीं बोला सर, वो इतना जोर से बोल रहा है, मेरा नहीं आवाज नहीं आ रहा होगा इसलिए। जोर से बोलो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। नहीं सर, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है सर, जनरेशन हाँ ना, टू समझ में नहीं आ रहा। अब ये वाला लाइन को पढ़ो। compared to Generation 1 virtual machines, Generation 2 virtual machines might have improved boot and installation times. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पता चला कि क्या इंप्रूव किया है जनरेशन 2 और ईवीएफआई? ईवीएफआई ने क्या इंप्रूव किया? दैट इज द इंप्रूव Boot बूट को एंड improve. इंस्टॉलेशन टाइम। तो आज के डेट में तुम कोई भी मशीन को तुम प्रोवाइड करोगे कोई एम्प्लॉय को, तो वो बोलेगा कि मेरा सिस्टम स्लो है इसलिए मैं खुश हूँ? कोई नहीं बोलेगा। सभी को यही टारगेट है कि सर आई नीड ए वेरी गुड मशीन वेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इज हाई कॉन्फिडेंस। क्लियर अंकित? हाँ सर, अभी तो है सर। अब बताओ कि कहाँ पे डाउट है? एडवांटेज पता होगा तभी तो तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ओल्ड के लिए क्या फीचर्स है और न्यू के लिए क्या फीचर्स। सर न्यू में जो है वो बूट जो है वो इम्प्रूव और इंस्टॉलेशन टाइम्स को इम्प्रूव हाँ, किया गया है, यस। यही है ना सर? अभी यदि बोलोगे सर हमको थोड़ा और एक्सप्लेन करो,
और डीपली एक्सप्लेन करो या एकदम जीरो लेवल से एक्सप्लेन करो, तो सबसे पहले तुमको इंस्टॉलेशन से पहले चला जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट तुम्हारा नेक्स्ट 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 से पहले पार्ट से पोर्शन, ठीक है। यदि तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तो तुम्हारा बूट मोड्स आता है, ये जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा जब तुम विंडोज इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे तुमको बूट मोड्स करके एक चीज आएगा। दो तरह का बूट मोड है, एक तुम्हारा है लिगेसी और एक तुम्हारा है ईवीएफआई, राइट। ये जो लिगेसी है ना, ये तुम्हारा वर्चुअल मशीन वीएमआर में अगर बायोस शो करेगा। इसका मतलब क्या, बायोस लिगेसी जनरेशन 1 बोथ आर द सेम कैटेगरी। इज इट क्लियर अंकित नाउ? हाँ सर, हाँ। मतलब जो एमबीआर है वही वो चीज लेगेसी तुम्हारा, होगा। वही चीज पहले 1 बाय 1 आराम से, और वही चीज यूएफआई में चले जाओ, यूएफआई में अगर वही सेम सेटिंग्स दिखाएगा, लेकिन इसमें और एक छोटा सा सेटिंग सेट हो चुका है विच इज कॉल्ड सिक्योर बूट। तो सिक्योर बूट वही जगह पे एनेबल होगा जहां पे ईवीएफआई एनेबल है। इज इट क्लियर? ओके सर। ये सब प्री रिकॉर्डेड में भी इतना डिटेल्स में नहीं हुआ है, और कोई भी टीचर इतना डीपली नहीं बताया, आई नो। तो थोड़ा रेस्पॉन्स करो तो अच्छा रहेगा। इज इट क्लियर? तो थोड़ा डर लगता है ना सर, कहीं आप डांट अभी ना दी यही चीज तुम्हारा हाइपर वी में चले जाओ, सेम फॉर्मूला, सेम रूल, सेम कैटेगरी, लेकिन उसमें मतलब उसका जो क्या बोले, उसका उसका जो अलग वे है। यहाँ पे अगर जनरेशन 1 जनरेशन 2 वही सेम कैटेगरी है, कैटेगरी सेम है। जनरेशन 1 जो आएगा वो किसको सपोर्ट करेगा, दैट ओनली सपोर्टेड द बायोस बेस्ड आर्किटेक्चर, और जनरेशन 2 किसको सपोर्ट करेगा, दैट सपोर्टेड द ईवीएफआई बेस्ड बूट आर्किटेक्चर। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज कम। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यदि तुमको रूट से समझना है तो रूट से रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और अगर वही चीज तुम माइक्रोसॉफ्ट एजूर में चले जाओ, वही चीज तुम्हारा सेम वीएम जनरेशन का कॉन्सेप्ट, तुम जब वीएम का स्नैपशॉट लोगे तब यहाँ पे भी वीएम जनरेशन आएगा, जनरेशन 1 जनरेशन। अब समझ में आया अंकित? हाँ सर। क्या अभी भी डाउट है? नहीं सर, अभी समझ में आ गया। मतलब हाँ। बेसिकली यूईएफआई जो है वो प्रॉपर मेडिसिन तभी मिलेगा जब प्रॉपर इलाज होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे गुस्सा करने से नहीं होगा, एकदम कूलली रेस्पॉन्स करना है, और एवरी टाइम। मैं तो बोल रहा हूँ 10-15 लोग बताएगा, लेकिन तुमको लगेगा हम तो बोल रहा हूँ, नहीं, हम तुमको ही डिनोट करते हैं। अंकित मतलब अंकित, अनूप मीन्स अनूप, ठीक है। तो प्रॉपर रेस्पॉन्स करोगे, प्रॉपर क्वेश्चन प्रॉपर आंसर। क्लियर? अब चलो थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते तो और ज्यादा क्लियर होगा। जो पहले और एक जन ने भी बताया था जब मैंने क्वेश्चन पूछ रहा था, legacy coming under BIOS based architecture generation 1 both are in same category। कोई जगह पे BIOS देखने को मिलेगा, कोई जगह पे Gen 1 देखने को मिलेगा, कोई जगह पे legacy देखने को मिलेगा। तीनों का कैटेगरी सेम है। इसमें कोई डाउट है तो पहले कंफर्म करो। सर इसका डाउट नहीं है। चला गया अंकित? तुम्हारे लिए रिपीट करो, तुम ही चला गया। रेस्पॉन्स करो भाई, कॉल तॉल मत अटेंड करो अभी। कॉल तॉल बोल दो कि अभी बिजी है, नहीं सर, म्यूट हो गया था सर, पता नहीं तो बस कैसे। वही म्यूट मत करो, ठीक है। ओके सर। तो ये किसके अंडर में आएगा, दैट इज कमिंग अंडर द ओल्ड बूट। ये पुराना बूट है, ये बूट सिक्योर नहीं है, नो सिक्योर बूट। एंड व्हाट पार्टीशन सपोर्टेड, दैट सपोर्टेड द एमबीआर। ये एमबीआर को सपोर्ट करेगा, ये एमबीआर को सपोर्ट करेगा। यूएफआई किसके अंडर में आएगा, यूएफआई कमिंग अंडर यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फार्मर इंटरफेस। So this is coming under what? This is coming under secure boot. That is coming under the generation. It's a new boot. It's a fast boot. What partition style supported? That supported the GPT partition style. Yeah. तो जब तुम विंडोज इंस्टॉल करोगे ना, ये दो फॉर्मूला याद करो। इफ यू हैव वेरी ओल्ड मशीन, जैसे मान लो तुम विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हो, तो तुमको लीगेसी एमबीआर से विंडोज को इंस्टॉल करो।
इफ यू हैव ए लेटेस्ट जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मान लो विंडोज 7 के बाद जितना भी सारे OS आ चुका, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, both are supported what? Both are supported the UEFI. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. अंकित बताओ, कुछ डाउट है? अंकित, म्यूट हो रहा है। हाँ सर, नहीं है सर, अभी सही है। इसीलिए तो क्वेश्चन मैंने तो इसीलिए तो पहले से ही बोल रहा था कि जहां पे तुम्हारा डाउट है वो तभी बता दे कि सर हमको यहाँ पे डाउट है, आप बता दो। इसीलिए तो मैं सर एकदम वो जीरो लेवल से स्टार्ट किया, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में। हाँ सर, ये तो यहाँ है। पे जो चीज नहीं पता है तुम नंबरिंग बताओ, हम उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करें। फिल्टर मत लगाओ ना, बोला तो पहले ही। तुम कोई भी बैच से हो, मेरा बैच से हो, ओल्ड बैच से हो, मिडिल बैच से हो, सेकेंड वीक बैच से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। रेस्पॉन्स करोगे प्रॉपर आंसर मिलेगा, प्रॉपर है। ओके। तुम लोग यहाँ पे कोई भी बता दो जो मेरे बैच से हो, किसी का कोई भी इशू है तो तुमको नहीं मिला था। No, sir. नो सर, हमारा सब क्लियर है। तो एवरीवन सी, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, देखो बिल्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर। ये बिल्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर अभी किस कंडीशन में है? वह ग्रुप में है या डोमेन में है? बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर। ये वह वर्क ग्रुप ग्रुप में में, है या डोमेन में? वर्क ग्रुप में है। वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप सर। आई होप माइक सभी का एनेबल है, एक बार चेक कर लो। Yes, वर्क sir. ग्रुप यस सर। सर। तो मैं सबसे पहले लॉग इन करेंगे पासवर्ड से abcd@1234, abcd@1234। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर, में एंड या पासवर्ड क्या है? abcd@1234। तुम यहाँ पे नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 नहीं डाल सकते। दिस इज सर्वर, दिस इज नॉट विंडोज 10। देन क्लिक ऑन, देन बारे को प्रेस कंट्रोल और डिलीट। Administrator is username, password is abcd@1234. It's already signed, just log on to here. Now my question is that is a by default server that is available in Bakur for domain. Response please. By default available वर्क in ग्रुप Bakur का। for domain. वर्क वर्क ग्रुप ग्रुप ये सर। वर्क ग्रुप CPM। हाँ सर। वर्क ग्रुप सर। All answer same। और यह सर डोमेन में है, कहाँ पे है? वर्क ग्रुप सर। वर्क ग्रुप सर। क्लियर? यस सर। Yes, तो sir. ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा? ये वाला जो मैंने क्वेश्चन, when you install Windows operating system, any type of Windows operating system, they are where available? They are available in workgroup. वर्क ग्रुप। Clear everyone? Please come. यस यस सर। यस सर। Clear? See the message and confirm. यस। यस सर। No voice, the screen is going to hang. Voice नहीं लाओगे तो screen hang हो जाएगा। Is it clear to everyone? यस सर। Basics. यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे? पहले अपना बेसिक इंफॉर्मेशन चेंज करना कंपलसरी। We have to change the host name because it's easy to remember. Win minus KAPU. Is it remember? That is not. नो सर। यहाँ पे देखो DSRM पासवर्ड समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड 3 एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तुमको 3 एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर्वर में कितना एडमिन है पहले ये बताओ।
What number of admins are available in server? 1. One. One, sir. Okay. बताओ जल्दी बताओ, टाइम कम। प्लीज का है ना रिस्पॉन्स कितना सर एडमिन? आपका आवाज धीमा हो गया सर। सर आपका आवाज स्लो हो गया। आपका माइक आवाज स्लो हो गया। अभी अभी सही ठीक आ है रहा सर। है। माइक 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 नाउ सही है। अभी ठीक है सर। यस सर। सही है हाँ सर, सर, सही है। सही हो गया। बताओ कितना एडमिन है अभी तुम्हारे पास? सर एक ही सर्वर एडमिन होगा। एक ही एडमिन है ना। सर्वर एडमिन बिल्ट इन एक ही एडमिन है, लेकिन जब तक हमारा डोमेन कॉन्फ़िगर हो जाएगा तब तक कितना एडमिन रहेगा? सर डोमेन एडमिन रहेगा एक सर, बस नॉर्मल एडमिन। बस इसी में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। डोमेन एडमिन और डीएसआरएम एडमिन दोनों क्या सेम है? नो। नो। नो सर। हाँ हाँ सर। सर। बताओ। हम लोग रिमेम्बर करने के लिए सेम पासवर्ड डालते हैं, चलो ठीक है, बट वो कॉन्सेप्ट और सेम, क्या वो दोनों सेम है? नो नो सर। सर। बोथ आर डिफरेंट। ये जो वर्क ग्रुप एडमिन हो रहा है, ये वर्क ग्रुप एडमिन ही बाद में कौन एडमिन बनेगा? दैट वर्क ग्रुप एडमिन गोइंग टू अ डोमेन एडमिन। ये जो वर्क ग्रुप का यस एडमिन सर। है यही बाद में क्या एडमिन बनेगा? ये डोमेन बाद में एडमिन। डोमेन एडमिन बनेगा। कैसे बनेगा? डोमेन में प्रमोट करने के बाद। सो राइट नाउ आई जस्ट डू रिस्टार्ट। तो व्हेन आई डू रिस्टार्ट, अभी रिस्टार्ट करने के बाद ये मशीन किसके साथ कनेक्ट रहेगा? दैट इज ओनली वर्क ग्रुप एडमिन। इफ यू टाइप हु एम आई, व्हाट इज विजिबल, अभी क्या शो करेगा? राइट नाउ विजिबल सर्वर 1 स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। सर्वर 1 स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर क्यों शो करेगा? क्योंकि बोथ राइट नाउ दिस पर्टिकुलर विंडोज सर्वर अवेलेबल इन वर्क ग्रुप, दैट्स व्हाई इट्स विजिबल सर्वर 1 स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। When system join to यस the सर। domain, that times you can see domain name slash administrator. Remember, यस don't सर। forget, यस respond सर। please. यस सर। अभी ये सिस्टम डोमेन में नहीं है, ये सिस्टम ऑलरेडी वर्क ग्रुप में है, इसीलिए तुमको क्या शो करेगा? पोस्ट नेम स्लैश यूजर नेम। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तुम सीएमडी में जाओ एंड देन टाइप योर हु एम आई। हु इज दिस राइट नाउ? दिस इज अवेलेबल इन server 1 administrator. And where it is available? It's already available in work group. ये किस में है? ये already work group में है। What operating systems? That is install Windows Server 2022 right now. Everyone clear? Please confirm. यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। We are installing, we are configuring domain server, but you must know where the systems present. Everyone clear? Please confirm. यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम कहाँ पे है? बाय डिफॉल्ट सिस्टम्स अवेलेबल इन वर्क ग्रुप वर्क राइट। वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप में। So first condition when you are installing the server, that time that server available in work group. Now you have to configure domain manually. अभी तुमको domain को manually configure करना है। So at first where you go, first of all you just change the time zone. सबसे पहले हम time zone change कर लेते हैं। और मैं सभी को ही कहता हूँ टाइम जोन तभी चेंज करना when your internet should be connected. Okay. Everyone see here already the time is updated 11:34 a.m. Yes, sir. Next what I do? Next we are assigning the IP addresses. So ncpa dot cpa right. First of all go to Ethernet 0, click on properties, internet protocol version for which IP assign here. सर इससे Just पहले allocating the IP एड्रेस which को is one. हाँ सर IP6 जो है उसको अनसेलेक्ट भी तो करना होगा ना। हाँ वो लास्ट में, नहीं तो डीएनएस में इशू आ जाएगा। डीएनएस इशू रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तुम एनएस लुकअप तो करोगे बट यू आर नॉट एबल टू चेक द डीएनएस कम्युनिकेशन ऑफ IPv4. दैट्स व्हाई वी आर डिसेबलिंग IPv6. सो व्हाट आईपी असाइन, अच्छा आईपी के बारे में आइडिया है तो या रिपीट करूं? नहीं सर। यस सर। आइडिया है। पक्का तो?
Yes, sir. Yes, क्लास sir. ए कितना बिट नेटवर्क है? सर 32 बिट 24. ना 24. 1 to 27. मैंने रेंज नहीं Network पूछ रहा हूँ भाई लोग. to आई डोंट आस्किंग एनी रेंज. आई एम आस्किंग अबाउट क्लास ए सबनेट, क्लास बी सबनेट, क्लास सी सबनेट. 24, sir. क्लास 8 का सबनेट होता है तो Sir, network bit 24. 255.0.0. का सबनेट होता है सर 255 सर, और 255 सर ने पूछा नेटवर्क बिट. क्लास 1 का सर. यस सर क्लास जीरो वन का क्लास 1 का 255 255 इसको को नहीं एडिट सर करो. 255 0.0.0.0 8 bit of network and 24 bit of host, sir. पहले क्लास ए का बताओ. सर 255.0.0.0. सर स्टार्टिंग तक 255 बाकी जीरो. यस सर. कितना बिट नेटवर्क है? 8 bit. कितना बिट होस्ट है? 24 bit. 24 bit. एनी कंफ्यूजन? No. नहीं सर. यही क्वेश्चन पहले 100% जरूर पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में. कितना बिट नेटवर्क, कितना बिट होस्ट, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. क्लास बी के लिए बताओ. 255.255.0.0. 16 bit network, 16 bit host. 16 बिट नेटवर्क 16 bit 16 host. bit host. एंड 16 बिट. क्लास सी का बताओ. 55.0. कितना बिट नेटवर्क? 24 bit and 8 bit host. 8 bit host. एनी कंफ्यूजन? No sir. No, sir. ये क्वेश्चन तो भाई जरूर है. आईपी का एग्जांपल बताओ. आईपी का सर है का यूनिकास्ट होता है. मैं रेंज नहीं पूछ रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ. आई डोंट आस्किंग एनी रेंज, आस्किंग एग्जांपल. 192.168.1.2. हाँ 198.168. 198 क्लास ए. Class क्लास ए. 92.0.0.0. तुम लोग क्या स्क्रीन देख के बता रहे हो या आईपी कॉमटी या एन प्लस का या सीसीएनए का फोटो देख के बता रहे हो? खुद से बता रहे सर. सर 1.0.0.0. यस 250. आईपी कहाँ से शुरू होगा? वेयर इट इज यूज्ड फ्रॉम? वन टू 254 तक. तो यहाँ पे जीरो किसको रिप्रेजेंट होता है? नेटवर्क बिट. 255 किसको रिप्रेजेंट होता है? ब्रॉडकास्ट. यानी एवरीवन हैव आइडिया और कंफ्यूजन? आइडिया सर. आइडिया. कॉमटी में सीसीएनए में स्टडी किया है ना सर? का 1 डॉट होगा. यस सर. वही ना 1 से भी शुरू होता है, 10 से क्यों शुरू हो रहा है सर नेटवर्क? 1 से इसका होगा ना सर. कौन सा? वो एग्जांपल दिया है सर. 10.0.0.1 ये तुम्हारा आईपी का पूल है भाई, ठीक है? ये आईपी पूल है और ये आईपी यूज है, ठीक है? यहाँ पे तुम जीरो एंड 255 को तुम 1.0.0 होना चाहिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज जीरो व्हाट रिप्रेजेंट द नेटवर्क एंड 255 व्हाट रिप्रेजेंट दैट इज यूज्ड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्ट सर. फर्स्ट और लास्ट आईपी को यूज नहीं किया जाता है. सर तो 10.0 क्यों है सर? 1 से ना शुरू होना चाहिए. 1 भी थे 1 2 3 ये एग्जांपल है. ये एग्जांपल है ना. एग्जाम्पल है ये. तुम कोई भी आईपी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंडस्ट्री में तुमको यही सीरीज का आईपी देखने को मिलेगा. क्लास ए के लिए 10 सीरीज का आईपी, क्लास बी के लिए 172.16 का आईपी एंड क्लास सी के लिए 192.168 का आईपी. इंडस्ट्री में काम किए हो? नो सर. क्लास बी का एग्जांपल बताओ.
172.16.0.0. 192.168.0. बाबा रे 192 नहीं 192 होगा, क्लास 192 सी में आएगा। क्लास सी में सर, सॉरी सॉरी, तुम 128 लोग वन तुम लोग क्या बता रहे हो कि 190 बोलोगे और कंपनी ऐसे ही आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर लेगा? नो हाँ, हो पहले सकता है सर। रिजेक्ट, बाकी क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं। बताओ आईपी बताओ। 172.16.0.0 to 172.16.0.0. ठीक है, आईपी यूज कहाँ से होगा? 172.16.0.12. 16.0.254। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी जीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 255 किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ये आईपी का थ्योरी डीएचसीपी में भी इम्पोर्टेंट है, सीसीएनए में भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी नेटवर्किंग में जाओ। और क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, पूरा एकदम जीरो से लेके लास्ट तक पूरा बताना पड़ेगा। ये जो जीरो से कितना बिट तुम यूज कर रहे हो, जीरो से लेके 255 तक कौन सा से कौन सा रेंज है, वो भी तुमको एक्सप्लेन करना होगा। क्लास सी का बताओ। 192 168.0.0. 1.0 आईपी पूल बताओ पहले। 192.168.1.0 1.225। आईपी ये यूज कहाँ से होगा? 192.168.1.1 192.168.1.254. हियर आल्सो सेम, वही जो हर एक के लिए सेम होता है। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया किसके लिए? ये जस्ट एक पर्टिकुलरली एग्जांपल है आईपी का। अच्छा, ये प्राइवेट आईपी है कि पब्लिक आईपी है? Private है. प्राइवेट है सर। ठीक है, पब्लिक नहीं। हाँ, पब्लिक आईपी यू आर बाइंग फ्रॉम द आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना होगा। तो भी तो इसी से ना देगा सर। हाँ हाँ, तो भी तो इसी से ना देगा। इसी से मतलब देगा, क्लास लेकिन लास्ट सीरीज चेंज होता है। ये जो लास्ट बीट होता है ना, ये जो तुम्हारा यस सर, लास्ट बीट है, ये वाला बीट यस चेंज सर। हो जाता है। जब तुम क्लास सी का आईपी असाइन करोगे तो सबनेटिंग किया था, पहले सबनेटिंग किया जाएगा, फिर तुमको आईपी मिलेगा। तो डायरेक्टली कॉमन सीरीज का पूल नहीं मिलता है। अच्छा, और एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी है, एक ऑक्टेट कितना बिट का होता है? 8 8 bits. बिट 32 bits. 8 bits. 8 बिट 22 बिट? किसने 8 बिट सिखाया हुआ 22 बिट? हाँ, ये जो 22 बोला कहाँ से बोला, कौन सा थ्योरी से? सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एआई, कौन सा, विच वन? हेलो, नहीं बोला है। 8 बिट का होता है ठीक सर है, एक ऑक्टेट। दिस यस इज एट द सर। बिट एग्जैक्ट थ्योरी फ्रॉम सिस्को। अभी बोलोगे सर आप बताओ, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो 255 का काउंटेबल है ना, वो भी एक पार्टिकुलरली थ्योरी से होता है, तुम्हारा हमारा बात से नहीं होगा। यस सर, बस Yes, sir. Yes, sir. 0 2 ऐसे करके सर हम काउंट लेते हैं सर, सेकंड। रूट का एग्जांपल है, रूट। तुमने रूट का प्रैक्टिकल किया है? नहीं किया है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या है ना सर वन इसका? ऑक्टेट इज इक्वल कितना टू बिट 8 है? 8 बिट कौन है। बता रही है? हु कॉल दिस? Cisco. Cisco. ठीक है,
तो तुम इंडिया के लिए नहीं, तुम दुनिया की कहीं भी पार्ट में कोई भी लोकेशन में चले जाओ, ये थ्योरी कभी चेंज नहीं होगा। और टू द पावर ये जो 255 है ना, ये कहाँ से काउंटिंग होता है? टू द पावर 0, टू द पावर 1, 0। टू द पावर 2, टू द पावर 3, यस सर। टू द पावर 4, इस तरह से। 32 बिकॉज टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ओनली। 0 One. 1। क्लियर? बस Yes, yes sir. sir yes sir यस सर। इसमें पूरा थ्योरी मेंशन है ना, क्लास ए का कितना बिट नेटवर्क है, कितना बिट, एकदम एग्जैक्ट सीरीज भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है 11000 से लेके 127.255 क्लास बी का 128.000 से 191.255 क्लास सी का 192.000 से लेके वो 223.255 क्लास डी का 224.000 से लेके 239.255 देन लास्ट बीट है तुम्हारा 240 से लेके 255 तक। क्लास डी किसके लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए, ये 28 बिट का है। और क्लास ई का जो है वो तुम्हारा 27 बिट का है, जो रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। बाकी सब यही थ्योरी को एक्सेप्ट करेगा। कितना बिट नेटवर्क है क्लास सी? 24 बिट नेटवर्क एंड 8 बिट होस्ट। यहाँ पे फास्ट जो डिजिट है वो तुम्हारा यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे कुछ बिट तुम्हारा नेटवर्क है और लास्ट बिट तुम्हारा होस्ट का है। ठीक है, yes sir एवरीवन रिमेम्बर दिस। ये सारे थ्योरी पता होना चाहिए। yes क्लियर sir ऑल? सर yes इसको sir याद yes रखना sir पड़ेगा ना? हाँ ऑब्वियसली, योर सैलरी क्रेडिटेड, बहुत कुछ रिमेम्बर रखना पड़ेगा, राइट? बस yes sir यस सर। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। IPv4 का साइज कितना है बताओ? 32 नाउ 32। bit IPv6 128 128 मैक एड्रेस 32 48. 48। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुमको इंटरव्यू में आ सकते हैं। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। हाँ, मैंने OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल तो नहीं पढ़ाएंगे, but whatever the main concept which is connected to server, connected with networking, connected with your DHCP practical also, that is all are important. Clear everyone? Please confirm. Where is my response? यस yes sir यस yes सर। sir क्लियर सर। थ्योरी ऑलवेज क्लियर रखना चाहिए भाई, थ्योरी कुछ मत भूल लो भाई, क्योंकि इसी थ्योरी के बेस पे तुम IP असाइन करोगे। IP कोई तुम्हारा अपना कोई लोकेशन से भी तुम असाइन नहीं कर सकते। सर That आईपी IP असाइन करने concept के should be important. हाँ हाँ बोलो। वही ना सर, फर्स्ट वैलिड होस्ट एड्रेस और लास्ट वैलिड होस्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट सबनेटिंग मास्क वगैरह से ही तो आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे ना सर, कैलकुलेट करें। सबनेटिंग तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, लेकिन सबनेटिंग कब? जब तुम एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम करोगे। एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम इंजीनियर या सर्वर इंजीनियर के लिए सबनेटिंग का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज नेटवर्क इंजीनियर हैव सेपरेट टीम, दे आर ओनली responsible to provide the free IP. But if you are going to as an associate network engineer or you are completed CCNA, CCNP, that time you are going to the network team, that time you have core knowledge about the subnetwork. One more concept is also very much important, that all serious details also must be remembered. ये भी डिटेल्स तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हर एक चीज मेंशन किया हुआ है। Yes, sir. yes sir और मैंने वो वेबसाइट भी दे दिया, तुम वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। तो आई होप एवरीवन क्लियर वेयर वी आर असाइनिंग IP। मैं IP कहाँ से असाइन कर रहा हूँ, इस IP का पूरा फुल yes sir थ्योरी पता होना चाहिए। सो राइट नाउ व्हाट yes sir क्लासेस IP आई एम यूजिंग हियर। ये जो class क्लास हम class यूज C करिए कौन सा क्लास का है? दैट इज अ class एग्जांपल C ऑफ क्लास C। C व्हाट IP असाइन हियर इन सर्वर 192.168.1.10। 1.10 मैं यहाँ पे गेटवे असाइन करेंगे 192.168.1.1। 1.1 DNS mention 192.168.1.10. 1.10 Click on OK. Here uncheck IPv6 because of why? Because I'm already IPv4 assigned किए हैं। You're already assigned IPv4, that's why just click on OK. Then click on close and close.
Next role what I enable, next we are enabling to check the ping status between two computers. यदि तुमको क्लाइंट मशीन रहे तो क्लाइंट मशीन शुड बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर. अच्छा, पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं? Chiral यू आर CP, चेकिंग द पिंग स्टेटस. आईसी ICMP, EMP. ICMP आईसीएमपी फुल फ्रॉम internet बस control mapping. मैपिंग बाबा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. Okay, sir. तो मैं क्लोन से मैं एक विंडोज 10 मशीन को क्रिएट कर लेंगे. प्रैक्टिकल आज ऐसे भी कंप्लीट होगा नहीं, बट जितना पॉसिबल है मैं तुमको दिखा रहा हूँ. क्लोनिंग से क्या कर सकते हैं? क्लोनिंग बेसिकली सेव टू मच टाइम. इफ योर Yes, वन sir. वर्चुअल मशीन टेकिंग टू क्रिएट 20 मिनट्स, यदि तुम बोलोगे सर मैं 20 मिनट सेव करना चाहता हूँ, that time you can follow this cloning process. With this help of clone you can easily create virtual machine, the client virtual machine, and you can use it for future purpose. बाबा रे, 20 से लेके 20, 23, 24, हु इज ज्वाइन न्यू? कौन कौन न्यू ज्वाइन हुआ भाई, और वो भी लेट से? सर अभी देखा क्लास हो रहा है, पहले इन्फॉर्म ना था, कोई इन्फॉर्म नहीं था. सैटरडे तो कंप्यूटर ओपन ही नहीं करता हूँ, तो क्लास पता चलेगा कैसे? नो रिप्लाई. बाबा रे, इतना वीआईपी है, कॉल आ रहा है. कर लो भाई, अटेंड कर लो. शिफा मंसूरी, शिफा ज्वाइन न्यू. शिफा, एस आई, नो अवेलेबल. No, sir, she is not in class. शिवानी गोली, शिवानी भाई ज्वाइन लेट. सर मैं ट्रैवलिंग में थी इसलिए सर. हेलो हम्म. सर, मैं ट्रैवलिंग में थी इसलिए लेट हुआ आज. ठीक. So what is the mentioned password? The password I mentioned here, administrator is username, password is abcd@1234. तो यहाँ पे भी हमको हर एक इंफॉर्मेशन चेंज करना है. We also check the communication between computer and computer between server. Computer must be communicate with server, server must be communicate with client. So this side already I'm assigning 192.160.1.10, right? अब हम लोगों ने कौन सा आईपी एलोकेटिंग किया है? How to check this IP? With IP config. What is the IP? 192.168.1.10. In these sites also doing the same activity. First of all, we are activating only administrator account. Next, we are only changing the host name. Next, we are changing the IP addresses. And next, we are also checking the firewall settings also. So at first, what I do, I just only delete the another account because I need only built-in administrator. हमको सिर्फ built-in admin से लेना देना है. So just only activated this built-in administrator account. Administrator is username, password is 12345. And then where I go, just enter the particularly host name also. Host name, what I'm assigning here? Host name assigning here computer one.
IP addresses what I'm allocating here, IP addresses allocating here 192.168.1.20 right now. हम लोग कौन सा IP assign करेंगे यहाँ पे? Which IP allocating here? 10 छोड़ के कोई भी IP assign कर सकते हैं, right? Yes, sir. 10 को छोड़ के कोई भी IP assign कर सकते हैं, 2 से लेके 9 तक एंड 11 से लेके 254 तक कोई भी IP. But what IP allocating here? Only 20 for remembering purpose. What DNS I mentioned, what gateway I mentioned, 1.1. What DNS I mentioned, the DNS taking from server only, क्योंकि ये directly server के साथ communicate करेगा. That's why 1.10. Click on OK. यहाँ पे भी uncheck Internet Protocol version 6. Then click on OK. Then click on OK. ठीक है. अभी यदि तुम बोलोगे सर क्या हम यहाँ पे ping check कर सकते हैं? If you check the ping status, what 192.168.1.20, तुम 20 के साथ communication check करोगे, and the computer one also checking the communication, the server also, server के साथ communication check करेगा 192.168.1.10. Why 1.10? Because it's already assigned what IP? Already assigning 192.168.1.20 IP. So 20 where must be connected? 20 must be communicate with 10 and 10 must be communicate with 1.20. But is it possible? This is not possible. Why not possible? Because both side we are also changing the firewall settings. So first of all, where I go, just go to firewall.cpl in the client sides. Opposite side से तुमको always check करना है. So first of all, just click on advanced settings. Inbound rules. Advanced settings, inbound rules. Just click on file ICMP. and printer sharing. I just search with F. But here I enable for both the profile. मैं यहाँ पे दोनों profile के लिए enable करेंगे. Private and public also we have enable and for domain also we have enable. तो क्या ये काम करेगा अभी? 100% server one must be communicate with 1.20 right now. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. यदि बोलोगे सर मैं दोबारा disable कर दे. If I disable private and public also and domain also, is it possible to receive? Not received. यहाँ पे request time out आ रहा है. So what is the reason? You can check this particular status. Everyone see right now just enable domain. Is it coming the ping? Right now not coming the ping. Because of why? Because every computer, server and computer both are in joined to the work group. That's why it's not working. Work group के लिए कौन सा काम करेगा? That only working private and public. When you go to private and public, now the ping is coming. Everyone clear? Please confirm. Live reply. Then I go to know. Yes, sir. Yes, sir. Same as computer one side also you can check the ping status of 1.10. Is it possible to check the status? Still request mode. So in the server side also you are doing this same activity. Firewall.cpl. Don't turn off the firewall. बहुत लोग turn off कर देते हैं. Advanced settings में ना जाके directly turn Windows Defender firewall on or off. This is always a wrong steps. This is low security. Which one is high security? Advanced is a high security. जो दूसरा बैच से था, don't click on turn Windows Defender firewall on or off. Okay, you always continue with advanced settings. After advanced settings, just click on inbound rules. After inbound rules, searching with F. Here you enable for both the profile. If you tell me why both profiles, sir, because here for checking the communication, which protocol works here? Only ICMPv4 works here. What is this? Echo request messages are sent as ping request to other nodes. Who is other nodes for server one? Server one के लिए other nodes कौन है? Computer one. So right now we can check the computer one status. Is it possible to receive the communication? 100%. Everyone clear? Voice mic response. Then I go. Yes, sir. इतना दूर तक तुम लोग करके रखना. कल हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है? Voice plus. क्योंकि मैंने already I send everything. Slow laptop, Windows 7 at least one, Windows Server 2012, okay? यदि system slow है तो 2012 use करो. यदि system very fast है, you can use Windows Server 22, okay? Yes, sir. Everyone clear, please? Yes, sir. Yes, sir. तो कल हम लोग Active Directory से discuss करेंगे, okay? Yes, sir. Just we are continue in Active Directory. Thank you, sir.
सही सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। समझ में आ रहा था सब कुछ? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. एवरीवन? Yes, Yes, sir. यस sir. सर। Yes, sir. अंकित? हाँ सर। मंस? मिस्टी? यस सर समझ आ मिस्टी? यस सर। किरण? ज्योति? आकाश? अभिजीत? यस सर। रजनीश? त्रिपर्णा? यस सर। संजय? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सब लोग प्रैक्टिस Thank you, करो, sir. हाँ, यस बिकॉज सर। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। सब कुछ इम्पोर्टेंट है। डोंट फिल्टर, कोई भी चीज फिल्टर मत करो, ठीक है? यस। यस सर। हम्म।